Welcome student to the next session of surface tension. Today we will study axis of pressure. Now to understand the axis of pressure we should understand the phenomena of surface tension. अब आप देखिए suppose when liquid surface is एक केस लेते हैं when liquid surface is convex. इसको थोड़ा फिर से अच्छे से ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स. अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस की. Okay, now it's all right. So we have drawn here a convex liquid surface. Now we will draw the forces of surface tension x tangentially, as you know it very well. Now the resultant of these forces is given by the diagonal of parallelogram. So R is the resultant force due to surface tension. But liquid is at rest. That means net force on the liquid should be 0. अब यहीं पे कंसेप्ट होती है. So there must be some force. There must be some force which should. There must be some force which should balance the resultant force due to surface tension. तो यहीं से एक्सिस ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट आता है. So this is called the axis of pressure. So delta P is called axis of pressure. Which balances the force of surface tension. Which balances the force of surface tension. So what is the reason? What is the reason
for axis of pressure? The reason is to balance the net force of surface tension. Surface tension के net force को balance करने के लिए हमें एक force की जरूरत होती है. Liquid rest पे है, इसलिए liquid पे लगने वाला net force क्या होना चाहिए? Net force acting on the liquid should be equal to 0. तो ऐसा कोई ना कोई तो force होना चाहिए जो net force of surface tension को balance कर सके. उसी force को हम कहते हैं axis of pressure. उसी force को हम कहते हैं axis of pressure. ये जो डेल्टा पी बताया गया है आपको, ये बताया गया है एक्सिस ऑफ प्रेशर. जो सरफेस टेंशन के नेट फोर्स को क्या करता है? बैलेंस करता है. तो इतना आपको नोट करना चाहिए. So if you are asked what is the reason for axis of pressure, so you will say the reason for axis of pressure is the resultant force of surface tension. अब देखिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेंगे और लिखेंगे. तो होपफुली आपने इसे अब लिख लिया होगा, तो इसे हम क्लियर करते हैं. तो लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं. Whenever a liquid surface is curved, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, कर्व्ड सरफेस के लिए है. द सरफेस टेंशन gives rise to a pressure which is directed towards, उसको अच्छे से लिखिएगा, towards the center of curvature of the surface of the surface. This pressure due to surface tension, ये जरूर लिखना है, due to surface tension is balanced by an equal and opposite pressure acting on the surface. Thus, there is always an axis of pressure
on the concave side of curved liquid surface. Over the pressure on its convex side due to surface tension. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड का कॉन्केव साइड होगा वहां पे एक्सिस ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा। अब लिक्विड के कर्व्ड सरफेस के दो साइड हो गए, कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कम रहेगा। We want to say this, that pressure will be more on concave side and pressure will be less on the convex side. तो इसको अब एक डायग्राम से हम लोग क्लियर करेंगे। So you can note it down. ये नोट करना बहुत जरूरी है। इसको 4-5 बार पढ़िए आप, इसको समझने की कोशिश करिए और with the help of 3 diagrams I will further explain you. एक्सिस ऑफ प्रेशर का रीजन है सरफेस टेंशन। जो नेट फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक एक्सिस ऑफ प्रेशर डेवलप हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सिस ऑफ प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड पर एक्ट करता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि लिक्विड के कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑन द कॉन्वेक्स साइड। एंड थर्डली, द रीजन फॉर एक्सिस ऑफ प्रेशर इज द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो एक्सिस ऑफ प्रेशर नहीं होता। तो इफ यू आर डन विद इट तो आप मुझे बता सकते हैं वेदर यू हैव डन इट और नॉट। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें बड़ा उसको क्लैरिटी से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, 3 तरह के केसेस होते हैं। व्हेन लिक्विड सरफेसेस, बना लेते हैं कॉन्वेक्स, अब देखिए अगर यहाँ पर प्रेशर, अब थोड़ा इसको हम अच्छे से लिखना चाहेंगे। अगर यहाँ पर प्रेशर P है तो कॉन्केव साइड पर होगा P plus delta P, and definitely delta P is axis of pressure. कॉन्केव साइड पे ज्यादा रहेगा। उसके बाद when liquid surface is concave, so it is like that. Just understand. अब देखिए, अगर यहाँ प्रेशर P है तो कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होगा, P minus delta P. अब तीसरा केस, when liquid surface is plane,
सो देयर इज नो कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ अगर प्रेशर P है तो जस्ट बिलो द प्रेशर विल रिमेन P. So there is no axis of pressure in case of when liquid surface is plane. तो ये तीन चीजें होती है. तो आप देख रहे हैं जब लिक्विड सरफेस प्लेन होता है, प्लेन सरफेस में एक्सिस ऑफ प्रेशर डेवलप नहीं होता है. तो एक्सिस ऑफ प्रेशर सिर्फ डेवलप होता है पॉइंट नंबर 1 व्हेन लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. पॉइंट नंबर 2, द रीजन फॉर एक्सिस ऑफ प्रेशर इज टू बैलेंस इज द surface tension. Why axis of pressure is developed? To balance the net force of surface tension. Next, the axis of pressure acts where? It acts on the concave side. तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर है. कॉनकेव साइड देखिए, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा. अब आप देखिए यहाँ पर कॉनकेव साइड ये है, तो प्रेशर कितना होगा? P प्लस डेल्टा P. और यहाँ कॉनकेव साइड पर प्रेशर कितना है? P है, और नीचे कितना हो गया? कम हो गया. और जब लिक्विड सरफेस प्लेन रहेगा तब आप कह सकते हैं देयर विल बी नो एक्सिस ऑफ प्रेशर. सो एक्सिस ऑफ प्रेशर इज डेवलप्ड व्हेनेवर द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. तो ये तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. तो एक्सिस ऑफ प्रेशर तभी डेवलप होगा व्हेन लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. और क्यों डेवलप होगा? टू बैलेंस द नेट फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन. क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है. इसका मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. सॉरी. तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर बता दीजिए. We are coming to that point. The axis of pressure inside a liquid drop, axis of pressure बिल्कुल कर्व्ड सरफेस की रेडियस पे डिपेंड करता है. ओके, तो ये आप लोगों ने अब नोट कर लिया, तो हम इसको आगे क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ प्रेशर inside a liquid drop. तो आउटसाइड प्रेशर इज स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो है P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अंदर प्रेशर होगा P प्लस डेल्टा P. P प्लस डेल्टा P. आप देखिए, सपोज यू आर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. अगर आप लिक्विड ड्रॉप के अंदर है तो आप देखेंगे आपको कैसे दिखाई देगा? कॉनकेव. तो कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है. तो बाहर से तो लिक्विड ड्रॉप कैसा है? कॉन्वेक्स है. अंदर से लिक्विड ड्रॉप कैसा है? देखिए कॉनकेव है. तो डेल्टा P इज 2T बाय R. T is surface tension and R radius of drop. तो अब देखिए, अगर ड्रॉप की रेडियस ज्यादा होगी, अगर ड्रॉप का रेडियस ज्यादा होगा तो एक्सिस ऑफ प्रेशर क्या होगा? कम होगा. ये क्लियरली यहाँ पे ये बात तो समझ में हमें आती है. ये रेडियस पे डिपेंड करता है और रेडियस कर्वेचर पे डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है.
और अगर ड्रॉप छोटा होगा, सपोज द ड्रॉप हैज गॉट स्मॉल रेडियस, तब क्या होगा? तब एक्सिस ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Fluid is a very detailed chapter. लगातार आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की इसमें जरूरत है। ओके, अब इसको क्लियर कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ प्रेशर inside a soap bubble. And you know that soap bubble has got how many surfaces? Two surfaces. If outside pressure is P, inside pressure will be more. P plus डेल्टा P. अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोप बबल के अंदर प्रेशर कितना है, तो आप बोलेंगे P प्लस डेल्टा P, मीन्स P प्लस एक्सिस ऑफ प्रेशर। अगर आपसे पूछा जाए सोप बबल के अंदर एक्सिस ऑफ प्रेशर कितना है, तो आप जवाब देंगे डेल्टा P, एंड डेल्टा P इज हियर गिवन बाय 4T बाय R। तो यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं दैट डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बबल अगर छोटा होगा तो एक्सिस ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा। So we are making it clear. अब जैसे एक बहुत छोटा सा हम अब क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू इट। Two soap bubbles have ready in the ratio 2:3. 2:3. Compare the axis of pressure inside these bubbles. So the question is very simple. Delta P is inversely proportional to R. So what we will have? Delta P1 upon delta P2 will be R2 by R1, or you may call it 1 upon R1 by R2. And R1 by R2 is given 2 by 3. So it will be 3:2. A very simple question.
तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस पे हम कुछ एक जनरल क्वेश्चंस करते हैं एक्सिस ऑफ प्रेशर पे। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पसंद आएगा। एक्सिस प्रेशर, pressure of one soap bubble is 4 times more than 4 times more than the other. Then the ratio of volume of first bubble to another one is. So this is the question which you can try to solve. 64 is to 1 taken from the examination, 1 is to 2. So I just want that you should solve this question and tell me the answer for this question. You can try. Axis of, देखिए, axis of pressure of one soap bubble is 4 times, 4 times, 4 times more than the other, 4 times more than the other. तो 4 times ज्यादा है प्रेशर। तो ये आपको गिवन है कि डेल्टा P1 इज 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2, ये गिवन है। और एक्सिस ऑफ प्रेशर क्या होता है, दोनों सोप बबल है तो दोनों का सरफेस टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट वन इज R1 वेयर एज द रेडियस ऑफ सेकंड वन इज R2। तो अब आप देखिए यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल होने वाला जो टर्म है वो है आपका 40 विल बी कैंसल्ड। अब हो सकता है आप लोगों ने इसे आंसर दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर R1:R2 1:4। वॉल्यूम का रेशियो बहुत सिंपल है, 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये तो कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। So it is 1/4 whole cube. So the answer will be 1:64. The answer will be A. So it is very easy to solve the basic level questions on axis of pressure. कोई बहुत प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े जोरदार होते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन वहीं से लेंगे। तो ये अब आपने इसे नोट कर लिया। अब देखिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं।
वो भी हमें करना चाहिए. A spherical drop of water. A spherical drop of water has radius अब रेडियस के बिना तो होगा नहीं. as radius 1 mm. ये mm में नहीं चलेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा. if surface tension of water, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं. if surface tension of water if surface tension of water is 70 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, then difference of pressure between inside and outside of outside of spherical drop. So we have got four answers again. 35 Newton per meter square, first choice. Second choice, 70 Newton per meter square. As I earlier told you, if you want to do good in your examination, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन थ्योरी पहले बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. तो आप चाहें तो आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब देखिए, आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, लिक्विड ड्रॉप है. तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा 2T/R. ये अब हमें कैलकुलेट करना है. एंड 2 इट इज 70 into 10 to the power minus 3. रेडियस है आपका 1 mm. तो 1 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 mm को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. तो करते हैं, चलिए. 1 into 10 to the power minus 3. ये तो अच्छा हुआ. ये तो काफी बढ़िया हुआ कि हम इसको आप कैंसिल कर सकते हैं. तो आपका आंसर तो अब आ गया 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तब आप इसको नोट कर लीजिए. देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस आर सिंपल. कुछ एक स्पेशल थ्योरी भी है जो हमें अभी आज करनी है एक्सिस ऑफ प्रेशर पे. फिर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट पे काम करना है. ओके, तो आंसर इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर. तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं. तो आंसर हमारा आ गया 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एक्सिस ऑफ प्रेशर inside a soap bubble is balanced by oil column. ये अच्छा क्वेश्चन है. of height, मेथड पे ध्यान दीजिएगा. of height 2 mm, then the surface tension of soap solution will be.
R is given 1 centimeter. Density of oil is given 0.8 gram per centimeter cube. Four answers: 3.9 Newton per meter. Second answer 3.9 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The third answer is 3.9 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. The fourth answer is 3.9 dyne per मीटर। तो अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है। सोप बबल के अंदर एक्सिस ऑफ प्रेशर कितना होता है? सबसे पहली बात 4T/R इक्वल टू कॉलम प्रेशर। कॉलम प्रेशर दिया जाता है HDG से, तो T विल बी HDGR डिवाइडेड बाय 4 H। अब H दिया हुआ है, हाइट कितनी दी गई है ये देखते हैं। हाइट दी गई है 2 mm, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेंसिटी देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर केजी पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप सीख लीजिए। और जी एन ले लेते हैं। रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 4। अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं, 16.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को लिख देंगे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये जो 8 आएगा 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। अब आपको 10 की पावर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो यू कैन कैलकुलेट इट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज द कंसेप्ट। ग्राम पर सेंटीमीटर को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। और जी को अगर हम 9.8 लेंगे तो नहीं तो थोड़ा आंसर में थोड़ा चेंज आ जाएगा, और ये कुछ 4 के आसपास आंसर आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जी हमने लिया है, जी हमने लिया है कितना? ग्राम। ग्राम इज 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक गलती हमने यहाँ पर करी है, ये एक्चुअली में -3 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी +3। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कर सकते हैं बी आंसर को टिक, बी आंसर को टिक कर सकते हैं। बी आंसर को टिक कर सकते हैं। यस, वी कैन टिक द बी आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम भी आपने देख लिया। कॉलम प्रेशर निकालना आपको आना चाहिए। और आप यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, मैं आपको अच्छे से नोट कराना चाहता हूँ। देखिए, एवरीबडी शुड नोट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
तो ये हो गया 10⁻³ और ये हो गया 10⁻⁶ m³। तो ये एक्चुअली 10⁻³ होगा। हमने गलती से उसको क्या ले लिया था, तो अब आप इसको ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम एक्सिस ऑफ प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एक्सिस ऑफ प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो हम कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस करने जा रहे हैं। लिक्विड कॉलम का प्रेशर आपने बिल्कुल सही कहा, HdG। अब एक मेथड है, इस पर आप बड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बी केयरफुल अबाउट इट, जो हम करने जा रहे हैं। ओके, important, determine the radius of new bubble formed when two bubble coalesce under isothermal conditions. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा लिख कर करेंगे, लेट V1, और एक डिफरेंट स्टाइल से करेंगे, आप इसको सीखने की कोशिश करिएगा। लेट V1 एंड V2 be the volume of two soap bubbles of radii R1 and R2. So we can write V1 as 4/3 pi R1 cube and we can write V2 as 4/3, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, R2 cube. If P1 and P2 be the axis of pressure inside the two soap bubbles, two soap bubbles, then P1 can be written as 4T by R1 and P2 को क्या लिख सकते हैं आप, 4T by R2। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा लंबा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड ध्यान देना जरूरी है एंड यू शुड concentrate on the method.
इसमें ये ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। Okay, so are you done with this? Okay. If R be the radius of new bubble, and P be the axis of pressure inside it, and V be its volume. तो V को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और P को हम लिख सकते हैं 4T/R। अब देखिए, यूजिंग Boyle's law, wait a minute, we can write PV equal to P1 V1 plus P2 V2. So P can be written as 4T/R, volume can be written as 4/3 pi R cube, P1 can be written as 4T/R1, V1 can be written as 4/3 pi R1 cube. Now P2 can be written as 4T/R2, and V2 can be written as 4/3 pi R2 cube. तो अब देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब जगह कॉमन हो गया, और 4T भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या? व्हाट यू आर लेफ्ट विथ R square equal to R1 square plus R2 square. So the radius of new bubble will be root of R1 square plus R2 square. Most important. Most important. This way. अब देखिए, इसको क्या है, हम डायरेक्टली लिख भी सकते थे, लेकिन फिर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। जब भी हमेशा याद रखिए, any two soap bubbles combined under isothermal condition and form a single bubble तो आंसर हमेशा क्या होगा, रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। आर क्यूब और आर कैंसिल हो जाएंगे भाई, आर क्यूब अपॉन आर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। अब बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कम ऑन, कैलकुलेशन करा करिए।
So this is very important. तो अब इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, whenever two soap bubbles comes in contact and collides means combined to form a single bubble, single soap bubble. The radius of single soap bubble will be root of r1 square plus root of r1 square plus r2 square. ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक्सिस ऑफ प्रेशर की। और हमेशा आप याद रखिए, एक्सिस ऑफ प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स towards the concave side, towards the concave side. If two soap bubbles comes in contact and with communication with each other, तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्योंकि एक दोनों की रेडियस डिफरेंट है, एक में प्रेशर ज्यादा होगा, एक में प्रेशर कम होगा, तो फ्लो ऑफ एयर विल डेफिनेटली टेक प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब तक कि प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका भी हम आंसर बहुत आसानी से हम दे सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। इजीली वी कैन आंसर सच क्वेश्चंस ऑन सरफेस टेंशन। और कैपिलरी राइज का भी जो रीजन होता है, वो एक्सिस ऑफ प्रेशर ही होता है। ये हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। कैपिलरी राइज का जो रीजन होता है, वो भी क्या होता है? एक्सिस ऑफ प्रेशर होता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट के एग्जामिनेशन में, द रेडियस ऑफ टू सोप बबल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इन आइसोथर्मल कंडीशन, they meet together in vacuum, so they form a new bubble, the radius of new bubble will be, तो बिल्कुल सिंपल है, radius of new bubble will be root of 3 square plus root of 3 square plus 4 square। तो इस तरह से हम ये सब चीजें बहुत आराम से कर सकते हैं। सेकंड सेशन में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट और दो तीन चीजें करेंगे। क्या होगा जब दो सोप बबल कांटेक्ट में आएंगे? तो एक कॉमन इंटरफेस बनाएंगे। तो इस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगले सेशन में हम ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, और बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं अगले सेशन में। ठीक है, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। सेकंड सेशन में हम बहुत सारी नई चीजें करेंगे।